everyone. A warm welcome to my respected dignitaries, colleagues, and all gathered over here. Thank you all for finding your time and joining us for today's webinar, which is organized by the Department of Cross Disability Early Intervention Center, NIPED, Dehradun. I am Meenakshi Gupta, working as a clinical psychologist in EIC NIPED, Dehradun. Before we start, I want to give some points clear over here. So I would like to make out some points which is going to help us in the further process. So in case if you have any queries, any questions regarding to the presentation, you can type it in your chat box. We will going to take all the questions of yours in the end of the webinar. It will be convenient for our resource persons and as well as for all our audience. Your active participation will be important for us throughout the session. Right now, may I have everyone to mute so that we can start our presentation. I would like to welcome Dr. Vibhuti ma'am as who is our convener for today's webinar. Ma'am, please. Thank you, Meenakshi ma'am. I would like to welcome all our participants and a resource person on the behalf of NIPBT Dehradun Cross Disability Early Intervention Center. आज का जो हमारा वेबिनार का टॉपिक है वो है डाइट एंड फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन इन चिल्ड्रन विद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जैसे आप लोगों को पता है कि मसल की वीकनेस एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो बच्चों में और बड़े लोगों में पाया जाता है। तो आज हम इसी चीज पे अपनी नॉलेज इंक्रीज करेंगे और हमें वैल्यूएबल लेसन्स हमारे रिसोर्स पर्सन द्वारा दिए जाएंगे। हमारे दो रिसोर्स पर्सन है आज, डॉक्टर प्रतीक्षा राव जिन्होंने जो असिस्टेंट प्रोफेसर है मणिपाल कॉलेज में, वेलकम मैम। एंड सेकंड रिसोर्स पर्सन हमारी है हुमांशी अभी, जो कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट है EIC अर्ली इंटरवेंशन सेंटर NIPBT देहरादून। वेलकम टू ऑल द रिसोर्स पर्सन एंड द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू। Thank you, ma'am. So before we are going to start, I would like to give a brief introduction about the topic. जैसे कि मैम ने बताया, today we are organizing a webinar on importance of diet and physiotherapeutic intervention in maintaining lifestyle of children with muscular dystrophy. Our respected director, sir, Dr. Himanshu Das, sir, has completed his PhD in special education from MJP Rohilkhand University. He is really a gem in the field of disability, as he has contributed his 17 plus years in the field and served NIMH, CRC Bhopal and Srinagar, IGNU, RCI and civil society organization. He has also key positions in setting of 2 composite regional centers at Bhopal and Srinagar, as well as 3 district rehabilitation centers at Jammu and Kashmir. He is also the chairperson of Kiran Mental Helpline. He is recipient of several awards from different organizations and associations in disability sector. And most important, he has been a member in drafting the bullet of the project, the Cross Disability Early Intervention Center. The project was only prepared by the sir. We would be really pleasant to hear some words from the sir. Director sir, sir is busy with some official work. He would not be able to join us for today. So without wasting our time, we will move to our first resource person. It's an honor for me to introduce her and welcome her, our first speaker, Miss Humanshi Abhi ma'am. She has completed her bachelor's from PGI Chandigarh and master's from SV Netar, Orissa. She has expertise in clinical, teaching and academic perspective. Ma'am has 5 years of experience in dealing with pediatric, neurological, musculoskeletal and sports in the field of physiotherapy. She has also contributed in the field of research. Ma'am is currently working as physiotherapist in EIC NIPED Dehradun. Welcome ma'am. Thank you ma'am. सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे निर्देशक डॉक्टर हिमांशु दास सर का और हमारी मेडिकल ऑफिसर मैम डॉक्टर विभूति गुप्ता मैम का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज इस टॉपिक पर अपने विचार प्रकट कर सकूं और मैं आगे बता सकूं कि कैसे हम लोग इस मस्कुलर डिस्ट्रोफी को बच्चों में पहचान सकते हैं, जल्द से जल्द पहचान कर सकते हैं, ताकि हम लोग बच्चों को जल्द से जल्द
आइडेंटिफिकेशन करके जल्द से जल्द हम उन्हें इंटरवेंशन के लिए सेंटर में भेज सकें। तो जैसे कि मैम ने कहा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी, बात करना चाहूंगी कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी आखिर है क्या। मस्कुलर डिस्ट्रोफी हम लोगों की मांसपेशियों का एक ऐसा रोग है जिसमें कि धीरे धीरे करके हमारी मांसपेशियां जो है वो कमजोर होने लगती हैं। ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। जरूरी नहीं है कि शुरू में जब मांसपेशियों में दिक्कत आनी शुरू हो कि एकदम से इतनी ज्यादा कमजोरी आ जाए कि बच्चा बिल्कुल चल ना पाए या बिल्कुल बेड पर आ जाए। ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, प्रोग्रेसिव डिजीज है, जिसमें कि धीरे धीरे करके आपके जो लक्षण है वो आपको दिखाई देने लगते हैं। धीरे धीरे करके आपकी मांसपेशियां जो हैं वो कमजोर होने लगती है और जिसके कारण धीरे धीरे करके बच्चे की मोबिलिटी जो है वो अफेक्ट होने लगती है। उसको डेली जो टास्क है जो हम नॉर्मली कर लेते हैं, जैसे कि पास से कप उठाना एक नॉर्मल टास्क है, हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रोफी में मांसपेशियों की कमजोरी धीरे धीरे बढ़ने के कारण ये नॉर्मल टास्क भी बच्चों को करने में दिक्कत आने लगती है। तो बेसिकली जो आपका मस्कुलर डिस्ट्रोफी है वो आपकी मांसपेशियों का एक ऐसा रोग है और ये आपका जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक डिजीज मतलब जो आपका फैमिली में रन कर सकता है, हेरिडिटरी और जेनेटिक जो जीन्स में म्यूटेशन के कारण होता है। आपका इनहेरिटेड भी हो सकता है, फैमिली में हो सकता है कि आपको कभी आपकी फैमिली में आपके ग्रैंडफादर को, ग्रैंडमदर को, आपके पेरेंट्स में किसी ना किसी को फैमिली में ये दिक्कत रही हो जो कि आगे बच्चे में हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि कभी आपकी फैमिली में ये दिक्कत ना रही हो लेकिन ये एक्वायर्ड हो। जन्म के बाद कभी कभी हम लोगों के जीन्स में म्यूटेशन होने के कारण आपका जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लक्षण है वो दिखाई देने लग पड़ सकते हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि आपकी फैमिली में होगा, लेकिन हो सकता है कि आपके एक्वायर्ड किसी एनवायरमेंट फैक्टर के कारण, म्यूटेशंस के कारण वो एक्वायर होने के बाद आपको फैमिली में सबसे पहले हुआ हो। तो बेसिकली जो बच्चे होते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी के, उनमें क्या दिक्कत है ऐसी जिसके कारण उनकी मांसपेशियां जो है वो धीरे धीरे करके कमजोर होने लगती हैं। तो जो बच्चे होते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी के, उनके जीन्स में एक इस तरह का डिफेक्ट आ जाता है, इस तरह की एक दिक्कत आ जाती है जिसके कारण हमारी मांसपेशियों में एक प्रोटीन की जरूरत होती है जो कि हमारी मांसपेशियों को हेल्दी रख सकता है, स्वस्थ रख सकता है। लेकिन इस जीन इंफॉर्मेशन के ना होने के कारण या म्यूटेशन के कारण, जीन इंफॉर्मेशन गलत हो जाने के कारण जो प्रोटीन्स हमें चाहिए एक मांसपेशी को नॉर्मल रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, वो नहीं बन पाता है। या तो वो हमारी बॉडी में कम बनेगा या फिर नहीं बन पाएगा। तो इस मसल प्रोटीन के कारण, मसल प्रोटीन के ना होने के कारण या मसल प्रोटीन के कम होने के कारण धीरे धीरे करके आपकी मांसपेशियां जो है वो कमजोर होने लगती हैं और धीरे धीरे करके आपको डेली रूटीन एक्टिविटीज में, आपकी मोबिलिटी में आपको दिक्कत आने लग जाती है। ये जो है बेसिकली आपका प्रोग्रेसिव है, धीरे धीरे करके आपका बढ़ेगा ही, लेकिन वो डिपेंड करता है किस तरह की मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी के भी बहुत अलग अलग तरह के टाइप्स हैं, अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया गया है, जिसमें कि कुछ है जो बहुत जल्दी से तेजी से बढ़ेंगे, तेजी से उनमें मांसपेशियों में दिक्कत आने लगेगी, कमजोरी आने लगेगी। उसी जगह दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ मस्कुलर डिस्ट्रोफीज, कुछ मांसपेशियों के रोग ऐसे भी होंगे जिसमें कि प्रोग्रेशन जो होगा वो बहुत स्लो होगा। इतना स्लो होगा कि जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको दिक्कत आने लगे। एक में हो सकता है कि बच्चा आपका व्हील चेयर पर आ जाए और एक में हो सकता है कि बच्चा आपका चल सकता है, चल फिर सकता है, लेकिन कुछ कुछ मांसपेशियों में आपके दिक्कत आने लगे। तो बेसिकली जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है उसमें आपकी मांसपेशियों में कमजोरी आने लगती है जो कि प्रोग्रेसिव रहता है, धीरे धीरे बढ़ेगा। आपके जो मसल्स के प्रोटीन है जो कि हमें चाहिए एक हेल्दी मसल के लिए, उसमें दिक्कत आने लगेगी, डिफेक्ट होने लगेगा, जिसके कारण धीरे धीरे करके आपके मांसपेशियों के जो सेल्स हैं और जो टिश्यूज हैं वो खत्म होने लग जाएंगे। हम लोग अगर बात करते हैं RPWD एक्ट की, तो
तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में अलग अलग से डिसेबिलिटीज को क्लासिफाई किया गया है, जिसमें कि एक क्लासिफिकेशन है लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। उस लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आपके मस्कुलर डिस्ट्रोफी को अंडर क्लासिफिकेशन दी गई है। आपका जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग लोकोमोटर डिसेबिलिटीज के अंडर फॉल करता है। अगर हम बात करते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी की प्रेवलेंस कितनी है, कितने बच्चे हैं या कितने लोग हैं जिनमें आपका मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकता है, तो अगर हम लोग 1 लाख की पॉपुलेशन देखते हैं तो 1 लाख की पॉपुलेशन में 29 लोग ऐसे होंगे जिसमें कि आपको मस्कुलर डिस्ट्रोफी के केसेस मिल सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जब आप देख रहे हो बच्चे को तो सबसे पहले क्या लक्षण है जो आपको पता होने चाहिए, जिससे कि आप थोड़ा सा अपने माइंड में लेकर आ सकते हो कि हाँ, बच्चे में मस्कुलर डिस्ट्रोफी के जो लक्षण हैं वो पैदा हो रहे हैं या बच्चे में लक्षण हमें दिखाई देने शुरू हो रहे हैं। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी में जन्म के समय ही आपको लक्षण दिखे। जन्म के एक वैरायटी ऐसी भी है, एक क्लासिफिकेशन ऐसी भी है जिसमें आपको बर्थ में दिख सकते हैं, लेकिन सब बच्चों में आपको मस्कुलर डिस्ट्रोफी में जन्म समय पर जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे लक्षण दिखें। तो आपका जानना जरूरी है कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि आपके बच्चे में जो मांसपेशियां हैं उनका रोग जो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है वो शुरू हो गई है, उसके सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं। तो मैं कुछ ऐसे आपको लक्षण बताना चाहूंगी जिससे कि आप लोग देख सकते हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज में आप देख सकते हैं कि आपको लगने लगेगा कि शायद मांसपेशियों में कुछ दिक्कत आ रही है। तो हो सकता है बच्चा नॉर्मली, हो सकता है कि आपके बच्चे में सिम्टम्स 2 साल के बाद हों, कुछ बच्चों में हो सकता है 5 साल के बाद हों, कुछ में हो सकता है एडोलसेंट में जाता है। लेकिन जो हम लोगों के पास इनिशियल एज में बच्चे हैं, जब उनमें सिम्टम शुरू हो रहे हैं, तो आप क्या देखोगे, बहुत बार 2 साल का जैसे कि बच्चा है, 2 साल का बच्चा नॉर्मली आपको चलेगा, भागेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी। लेकिन धीरे धीरे करके मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बच्चों में क्या होने लगेगा कि आप देख पाओगे इस चीज को कि बच्चा दौड़ रहा है, पहले की तरह दौड़ रहा है, लेकिन दौड़ते दौड़ते अचानक से बच्चे का जो फॉलिंग है, गिरना बच्चे का ज्यादा हो गया है। पहले के कंपैरिजन में अभी बच्चा बहुत जल्दी गिरने लगता है, थोड़ा सा चलने पे गिर सकता है, भाग रहा है, भागते भागते अचानक से गिरने लग पड़ता है। तो बच्चे की जो फॉलिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा आप क्या देखोगे कि जब बच्चा गिरा तो गिरने से बच्चे को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कभी अगर गिर जाते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों को किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, बिना सहारे के भी हम लोग ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन इन बच्चों में क्योंकि उनकी मांसपेशियों में कमजोरी आनी शुरू हो गई है, जैसे उनके कूलों की मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है, हाथों की मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है, पैरों की मांसपेशियों में कमजोरी आ रही है, तो उस कारणवश क्या होगा कि जब बच्चा गिरा तो बच्चे को गिर के खड़े होने में दिक्कत आएगी, वो बिना सहारे के खड़ा नहीं हो पाएगा। तो उस समय पर वो क्या करेगा, बच्चा अपने ही शरीर से सहारा लेते हुए उठने की कोशिश करेगा, जिसे हम लोग नॉर्मली गोवर साइन कहते हैं। तो आप ये टिपिकली बच्चों में ये पैटर्न भी देख सकते हो कि बच्चा जब बैठा है और बैठ के उठने की कोशिश कर रहा है तो बच्चा बिना सहारे के नहीं उठ पाएगा। वो पहले जमीन पर हाथ रखेगा, फिर जमीन से एक हाथ छोड़ते हुए एक हाथ को अपने पैरों की तरफ रखेगा, फिर घुटने की तरफ लाएगा। ऐसे ही अपने ही शरीर से सहारा लेते हुए बच्चा खड़ा होगा। बिना सहारे के बच्चे को खड़े होने में दिक्कत आएगी। अगर बच्चा लेटा हुआ है, लेट के बच्चे को बैठने में खुद से बिना सहारे के दिक्कत आ सकती है। बहुत बार बच्चा जो है हाथों में, पैरों में कमजोरी के लिए बोलेगा कि उसे कमजोरी महसूस हो रही है, दर्द हो रहा है, थकावट महसूस हो रही है। तो नॉर्मली बहुत छोटे बच्चे तो आपको ये चीज नहीं बता पाएंगे कि हाँ मुझे कमजोरी लग रही है या दर्द हो रहा है। तो बहुत छोटे बच्चों में जब आप देखोगे तो आपको उनकी डेली एक्टिविटीज में देखना पड़ेगा कि जो डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज वो कर रहे हैं क्या वो ठीक से कर पा रहे हैं, ठीक से वो उठ रहे हैं,
लेटे हैं तो बैठ पा रहे हैं, बैठे हैं तो खुद से बिना सहारे के या हल्का फुल्का सहारा लेके उठ पा रहे हैं, या नॉर्मल बच्चों से आपको लग रहा है कि उन्हें ज्यादा सहारा लेने की जरूरत पड़ रही है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे को इन चीजों में, भागने में, चलने में, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है। मांसपेशियां कमजोर है तो सीढ़ी चढ़ना उतरना भी बच्चे को दिक्कत लगेगा, बच्चा सहारे के बिना नहीं चढ़ पाएगा या उतर पाएगा। तो ये सब चीजें आपको उनके डेली एक्टिविटीज में, डेली जो हम लोग चीजें कर रहे हैं उसमें नोट करनी है कि क्या बच्चे ये सब चीजें कर पा रहे हैं या ये सब चीजें करने में बच्चे को दिक्कत आ रही है। एक आप क्या देख सकते हो कि आप अगर देखोगे तो बच्चों में जो घुटने के नीचे, लेग के पीछे के जो हमारी मांसपेशी होती है वो आपको साइज में इंक्रीज दिखेगी, बड़ी हुई दिखेगी। तो बहुत बार आपके जो लोअर लेग है उसकी मसल्स का जो बल्क है वो इंक्रीज दिख सकता है, नॉर्मल से बढ़ा हुआ दिख सकता है। तो वो भी एक लक्षण है जिसमें आप सोच सकते हो कि हाँ, बच्चे में मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन लक्षण है, कुछ सिम्टम्स हैं जो कि आपको देखने हैं बच्चे में कि क्या ऐसे नॉर्मल डेली एक्टिविटीज बच्चा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है या दिक्कत से कर रहा है। तो अगर आपको लगता है तो उस समय आपको बच्चे को दिखाने की जरूरत है। अब हम लोगों ने बात की नॉर्मल हम क्या सिम्टम्स देख रहे हैं। अब अगर हम लोग मस्कुलर डिस्ट्रोफी की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी सिर्फ एक तरह की है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है उसे भी अलग अलग भिन्न क्लासिफिकेशंस में दिया गया है, अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। कुछ मांसपेशियां हैं जो कि आपके सिर्फ आपके फेस को, नेक को या शोल्डर को अफेक्ट करेंगी। कुछ मांसपेशियां हैं जो आपके कूल्हों की मांसपेशियों में दिक्कत लाएंगी। तो जो अलग अलग तरह की मस्कुलर डिस्ट्रोफीज हैं उनमें आपके कुछ स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स हैं जो अफेक्ट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर तरह के मसल डिस्ट्रोफी में आपको पूरी की पूरी मांसपेशियां ही अफेक्ट होंगी। जो आपकी स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। आपको अलग अलग एज में दिखाई दे सकते हैं लक्षण, जरूरी नहीं है कि जन्म पर ही दिखे। जन्म पर हो सकता है कुछ मांसपेशियों में जो कमजोरी आनी शुरू हुई आपकी, कुछ मस्कुलर डिस्ट्रोफिस में 2 साल के बाद दिखाई देने लगे, कुछ 5 साल के बाद, कुछ आपका एडोलसेंस में आके दिखाई देने लगता है। तो जो मस्कुलर डिस्ट्रोफिस हैं वो अलग अलग एज और सिवियरिटी में भी वेरी कर सकती हैं। कोई ऐसी हो सकती है जिसमें बच्चा बिल्कुल व्हील चेयर पे आ जाएगा, कोई ऐसी हो सकती है जिसमें बच्चे को चलने फिरने में दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो व्हील चेयर पे आ जाएगा। तो सिवियरिटी पे भी वो वेरी कर सकता है। तो हम थोड़ा सा कुछ ब्रीफ देखेंगे कि किस तरह की मस्कुलर डिस्ट्रोफीज आपकी हो सकती हैं। तो सबसे कॉमनली जो हम लोगों को देखने के लिए मिलती है वो आपकी है डशीन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, DMD। इसमें आपका एक डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है जिसकी एब्सेंस के कारण जो आपकी मांसपेशियां हैं वो हेल्दी नहीं रह पाती हैं। तो ये यूजुअली आपको अर्ली चाइल्डहुड में देखने को मिल जाता है। जो इसके सिम्टम्स, आपके लक्षण शुरू होते हैं वो आपके अर्ली चाइल्डहुड में शुरू हो जाते हैं। तो करीब 2 साल की उम्र से 5 साल की उम्र के बीच में हो सकता है कि जो डशीन मस्कुलर डिस्ट्रोफी है उसके लक्षण आपको दिखाई देने लग जाए। तो किस तरह की मांसपेशियां आपके DMD में अफेक्ट हो सकती हैं। DMD में आपके कूल्हों की मांसपेशियां अफेक्ट हो सकती हैं, आपके शोल्डर की हो सकती हैं, स्पाइन की हो सकती है। और जैसे जैसे प्रोग्रेशन बढ़ता चला जाता है धीरे धीरे करके आपके हार्ट की मसल्स, रेस्पिरेटरी मसल्स भी इन्वॉल्व होने लग जाती हैं, जिसके कारण बच्चों में धीरे धीरे करके बहुत कॉम्प्लिकेशंस आने लग जाती हैं। कमजोरी मिलेगी मांसपेशियों में। कमजोरी जब बहुत समय के लिए रहने लग जाएगी तो वो वेस्टिंग हो जाएगी, मांसपेशियां आपको पतली दिखाई देने लगेंगी। आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो, क्योंकि मांसपेशियां ठीक से आपके बॉडी स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं तो उसके कारण से आपका पोस्चर डिफॉर्मिटीज आने लगेगा, बच्चा टेढ़ा रहेगा। सांस लेने में धीरे धीरे करके रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व होंगी तो आपका रेस्पिरेटरी फेलियर होने लगेगा, दिक्कत आने लगेगी। जब हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होगी तो कार्डियोमायोपैथी होने लगेगी।
और डीएमडी का जो प्रोग्रेशन रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण हो सकता है बच्चे की जो यूजुअली डेथ होती है वो अर्ली 20s में हो जाती है। इसी तरह से दूसरा आपका बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है। जो आपका बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी है और डीएमडी है वो एक तरह से थोड़े थोड़े सिमिलर रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि बेकर में एक तो जो आपका डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है ऐसा जरूरी नहीं है मिसिंग हो, लेकिन वो थोड़ा सा कम हो सकता है। तो इसका जो प्रोग्रेशन भी है डीएमडी के कंपैरिजन में वो स्लो रहता है। बहुत एकदम से बच्चा ऐसा नहीं है कि व्हीलचेयर पे आ जाएगा या एकदम से आपकी मांसपेशियां जो है वो बहुत वीक होने लग जाएंगी। प्रोग्रेशन भी डीएमडी के कंपैरेटिवली कम रहेगा और सिवियरिटी भी आपकी कम रहेगी। इसमें अर्ली 20s में डेथ भी नहीं होती है, वो 30-40s में जाता है। इस तरह से एक आपकी होती है लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी। जो आपका लिम्ब गर्डल होता है वो बेसिकली आपका एडोलसेंस से अर्ली एडल्टहुड में चला जाता है। तो इसमें आपका बेसिकली जो प्रॉक्सिमल मसल्स हैं, जैसे कि आपकी ऊपर की शोल्डर की मसल्स रहेंगी, हिप मसल्स रहेंगी, इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो होती है ज्यादातर, लेकिन इसमें आपका फेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। आपकी आंखों के आसपास की मांसपेशियां, इन सब की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, वो बच जाती हैं। तो बेसिकली आपका जो शोल्डर और पेल्विक जो है, मतलब आपके कूल्हों के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो अफेक्ट होने लगती हैं। और इसमें हो सकता है कि वॉकिंग जो है वो अफेक्टेड रहे। विद इन 20 years ऑफ ऑनसेट भी आपका वॉकिंग जो है वो अचीव ना हो पाए, क्योंकि चलने फिरने में आपको जो है पूरी मांसपेशियों की जरूरत है, हिप की मांसपेशियों की, कूल्हों की, घुटनों की। तो जब आपका प्रॉक्सिमल मसल्स कूल्हों के आसपास की मांसपेशियों में ही दिक्कत आ रही है तो उसकी वजह से आपके चलने फिरने में भी दिक्कत आ सकती है। एक जो हमने बात की थी कि आपका बर्थ पे भी एक तरह का मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकता है, जो कि आपका कंजनाइटल मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है। इसमें भी आपकी जो प्रॉक्सिमल मसल्स रहती हैं, जैसे बिल्कुल शोल्डर के पास की हो गई, कूल्हों के पास की हो गई, इस तरह की मांसपेशियां जो है वो अफेक्ट होने लगती हैं। तो इस तरह की मांसपेशियां जब अफेक्ट होती हैं तो जैसे बच्चा नीचे बैठा है तो नीचे से ऊपर उठने में बच्चे को दिक्कत आने लगेगी। लेकिन जो आपका कंजनाइटल मस्कुलर डिस्ट्रोफी है वो प्रोग्रेसिव नहीं होता, वो नॉन प्रोग्रेसिव रहता है। लेकिन जन्म के समय से जैसे उनकी मांसपेशियां अफेक्ट हो रही हैं तो लॉन्ग रन में क्या होने लगता है, उनके जोड़ों में जो जॉइंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्चर डेवलप करने लगते हैं, बोलने में दिक्कत आने लगती है। और बहुत बार कंजेनाइटल मस्कुलर डिस्ट्रोफी में मैक्सिमम जो केसेस हैं उसमें बच्चे जो है वो चलना सीख ही नहीं पाते हैं। इसी तरह से एक हम लोगों की क्लासिफिकेशन होती है एम्ब्री-ड्रिफिस मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्लासिफिकेशन होता है, जो कि आपका चाइल्डहुड से अर्ली टीन्स में ही रहता है। इसमें बेसिकली आपकी जो ऊपर की है आर्म की अपर एक्सट्रीमिटी की प्रॉक्सिमल मसल्स जो है वो इंक्लूड होंगी, और जो लोअर एक्सट्रीमिटी है मतलब जो आपकी लेग्स हैं उसमें बेसिकली आपकी डिस्टल जैसे कि फुट की लोअर लेग मसल्स जो है वो आपकी ज्यादा अफेक्ट होने लगती हैं। तो इसमें बच्चे को दिक्कत आने लगती है, जैसे ऊपर उठाने की चीजें वो पकड़ लेगा, लेकिन उसे अगर ऊपर लेके जाना है तो उसे उस चीज में दिक्कत आएगी, क्योंकि उस समय पर हम लोगों की जो प्रॉक्सिमल मसल्स हैं या जो हम लोगों के शोल्डर के आसपास की मसल्स हैं वो काम कर रही हैं। इसी तरह से एक आपकी क्लासिफिकेशन है फेशियोस्कैपुलोह्यूमरल। फेशियोस्कैपुलोह्यूमरल जो है वो बेसिकली आपके फेस को ज्यादा इन्वॉल्व करेगी, फेस को, शोल्डर को, मतलब ऊपर का जो हिस्सा है वो आपका इन्वॉल्व रहेगा। और साथ साथ इसमें धीरे धीरे क्या होगा, आपका लेग्स का इतना इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होगा, आपका लेग्स नहीं होगा, ट्रंक का पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है उसमें आपको दिक्कत आने लगेगी। और धीरे धीरे करके क्या होगा, बच्चे के हियरिंग अफेक्ट हो सकता है, सुनने में दिक्कत आ सकती है, रेटिनल अबनॉर्मेलिटीज, आंखों में दिक्कत आ सकती है। तो जो भी आपके ऊपर के हिस्से की मांसपेशियां और ऊपर के हिस्से के जो स्ट्रक्चर्स रहेंगे उसमें बच्चे में दिक्कत आने लगेगी, जो कि लॉन्ग रन में रहेगा। और एक आपका होता है डिस्टल मस्कुलर डिस्ट्रोफी। डिस्टल मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है वो बेसिकली आपके नीचे नीचे के, जैसे कि आपके हाथों की मांसपेशियों में दिक्कत आएगी, आपके पैरों की फुट की मांसपेशियों में दिक्कत आएगी, लोअर लेग में दिक्कत आएगी, लेकिन आपके ट्रंक में अफेक्ट नहीं करेगा। तो जो भी आपका डिस्टल रहेगा, नीचे का फुट रहेगा, हैंड रहेगा, उस तरह के कामों में दिक्कत आएगी। जैसे कि कोई चीज अगर हम बच्चे को बोल रहे हैं पकड़ने के लिए तो बच्चा उस चीज को पकड़
पकड़ नहीं पाएगा, ग्लास को उठा नहीं पाएगा, पेंसिल को उठाने में दिक्कत आएगी। तो इस तरह की बच्चे को दिक्कतें आएंगी, जो कि बेसिकली आपका डिस्टल मस्कुलर डिस्ट्रोफी रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें आपके ऊपर की कूलों की या आपके मोटे की जो मांसपेशियां हैं उनमें अफेक्ट नहीं होगा। धीरे धीरे करके हो सकता है लॉन्ग रन में जब कॉम्प्लिकेशंस आने लगे या हमने सही समय पे जब शुरू नहीं किया है, तो उस समय पर आपका धीरे धीरे करके ऊपर कूलों की मसल्स या फिर आपके जो शोल्डर मसल्स हैं वो भी धीरे धीरे करके अफेक्ट हो सकते हैं। मेजर मसल्स जो है वो आपकी डिस्टल रहेंगी, फुट रहेगा, हैंड रहेगा, लेकिन प्रोग्रेशन में धीरे धीरे करके आपकी प्रॉक्सिमल मसल्स भी हैं जो कि अफेक्ट हो सकती हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं, हम लोगों ने सब डिस्कस नहीं किया है क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रोफी की अराउंड 34 टाइप्स हैं जो कि अलग अलग क्लासीफाई करी गई हैं, बट जो कॉमनली जो हम लोग देख सकते हैं और उसमें भी सबसे कॉमनली DMD जो हम बेसिकली देखते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं जो कि हम लोग देखेंगे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के बच्चे हैं जिनमें ये दिक्कत आनी शुरू हो रही है, और जब हमें एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में बच्चों को ले जाने की ज़रूरत है, उन्हें दिखाने की ज़रूरत है, ताकि जल्द से जल्द हम उन्हें अर्ली इंटरवीन कर सकें, उनका ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। इस पिक्चर में आप देख सकते हो जैसे कि 4th नंबर पे जो है, जिसमें कि आपका जो काफ का मसल्स है, जो मैं बात कर रही थी कि जो घुटने के नीचे की मांसपेशियां हैं उनका साइज इंक्रीज हो सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो बच्चा जब खड़ा हो रहा है तो कैसे पीछे की तरफ खड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट में आपको हो सकता है व्हीलचेयर की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखती हैं, कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण आपको देखते हैं, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज रियली अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। मैं उम्मीद करती हूँ हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बहुत मदद मिली होगी इस चीज से कि वो किस तरीके से पहचाने, क्योंकि समस्या का पहचान करना ही सबसे एक बड़ा स्टेप होता है। अगर वो पहचान नहीं पाते हैं तो उतना ही डिले हो जाता है उसको ठीक करने में भी। तो थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, अपनी जो एक इतनी अच्छी नॉलेज है आपने हमारे साथ शेयर करी बहुत ही खूबसूरत तरीके से। थैंक यू मैम। नाउ मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारी नेक्स्ट स्पीकर का, डॉक्टर प्रतीक्षा राव मैम का। शी हैज completed her bachelor's, master's and PhD in the field of physiotherapy from Manipal Academy of Higher Education, Manipal. She is working currently as an assistant professor at the Department of Physiotherapy, Manipal College of Health Profession, Manipal Academy of Higher Education at Bangalore, where she is involved in postgraduate training of physiotherapists who are pursuing their masters in physiotherapy in pediatric neurology. She is having more than 10 years of experience in rehabilitating children with various disabilities. She extended her services towards patient care at Manipal Hospital in Bangalore and is actively involved in research, having several national and international conferences, presentations and publications. Welcome ma'am. So thank you for the introduction and सभी को मेरा नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार और इस वेबिनार को प्रस्तुत करने के अवसर के लिए मैं निपमेट के टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले बच्चों की जीवन शैली को बनाए रखने में फिजियोथेरेपी की भूमिका क्या है। तो इस प्रेजेंटेशन के द्वारा मेरे कुछ उद्देश्य हैं वो जो इस प्रकार है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले बच्चों के प्रबंधन में फिजियोथेरेपी की भूमिका को आप समझे, घर आधारित चिकित्सा का महत्व समझे, लक्षणों की प्रगति और उसके द्वारा थेरेपी में होने वाले बदलाव को आप समझे, ब्रेसेस, ऑर्थोसिस और अन्य सहयोगी यंत्र की भूमिका को आप समझे। तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसकी भूमिका क्या होती है पहले हम ये समझते हैं। तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो रोग के प्रगति के दौरान जीवन के कार्य और गुणवत्ता को बनाए रखते हैं और ये सब वे व्यायाम, व्यवहारिक देखभाल और माता पिता की शिक्षा और भागीदारी के माध्यम से ही करते हैं। तो अगर हम देखें कि फिजियोथेरेपी का उद्देश्य क्या होता है,
वो ये होता है कि वो विकृति को रोके, वो लंबे समय तक कार्यात्मक क्षमता बनाए रखे, श्वासन क्रिया में सुधार लाए, परिवार के सदस्यों को शामिल करते हुए घर पर आधारित व्यायाम करे, बच्चों को जितना संभव हो स्वतंत्र और आरामदायक बनाने में मदद करे। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के विभिन्न प्रकार होते हैं जो अभी हुमांशी मैडम ने बताया है, और उनमें सबसे आम प्रकार ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी का होता है और हम इसके आधार पर आगे चर्चा करेंगे। तो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी का जो प्रोग्रेशन होता है वो 5 स्तरों से होता है या 5 स्टेज से उसका प्रोग्रेशन होता है। तो हर स्टेज में अलग प्रकार के सिम्टम्स होते हैं या अलग प्रकार के लक्षण होते हैं, तो हमें वो लक्षण समझना जरूरी है और उसके आधारित हमें ट्रीटमेंट देना जरूरी है। तो पहला जो स्तर होता है या स्टेज होता है उसमें बच्चों के विकास धीरे तरीके से होता है या धीमे तरीके से होता है। यहाँ बच्चे समझो बैठने या चलने में अधिक समय लगाते हैं और इसके कारण उनका जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। इस स्टेज में फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका ये होती है कि वो शिक्षा और समर्थन करे और फिजियोथेरेपी के द्वारा बच्चों को कम समय में बैठने, चलने और वगैरह एक्टिविटीज में मदद मिलता है, तो उनके ट्रेनिंग के द्वारा वो जल्दी ये सब काम कर पाते हैं। दूसरा स्टेज ये है जो अर्ली एम्बुलेटरी स्टेज कहा जाता है, जिसमें गोवर साइन पाया जाता है, जिसमें बच्चे जमीन से खड़े होने में उनको कठिनाई होती है। तो अगर आप देखें वो हाथ के बल या हाथ के द्वारा वो खड़े होते हैं, सीधे होते हैं। अक्सर वो अपने पैर की उंगलियों के द्वारा चलते हैं और अक्सर वो डगमगाते हुए चलते हैं, तो उनके पैर और हाथ दोनों फैले हुए होते हैं। इस दौरान फिजियोथेरेपी व्यायाम देते हैं और स्ट्रेचिंग स्टार्ट करते हैं, घर के आधारित एक्सरसाइज शुरुआत करते हैं और उम्र के हिसाब से जो उचित गतिविधि होती है उनको प्रोत्साहन करते हैं और जो फंक्शन है और पार्टिसिपेशन है जैसे स्कूल जाना या बाकी एक्टिविटीज करना, बच्चों के साथ खेलना, उसको उनमें उनको सपोर्ट करते हैं और उपयुक्त अनुकूली सहायता प्रदान करते हैं। अगला स्टेज आता है जिसमें बच्चे उनको चलने में कठिनाई बढ़ जाती है और सीढ़ियों पर चढ़ने और फर्श से उठने में उनकी क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ जो हमारे पिछले फिजियोथेरेपी के जो एक्सरसाइजेस थे वो हम कंटिन्यू करेंगे, जहाँ हम जोड़ों का सीमा बनाए रखना या कार्यात्मक शक्ति बनाए रखना या स्वतंत्रता बनाए रखना या उपकरण का सिफारिश करना, ये सब कंटिन्यू करते रहेंगे। उसके अलावा रोज घर पर एक्सरसाइज करना और स्ट्रेचिंग करना, इसकी शुरुआत करेंगे। उपयुक्त बैठने की सहायता और अनुकूलन को प्रदान करेंगे और अगर हृदय संबंधी कोई चिंता हो तो उसकी जांच करेंगे और उनका प्रबंध करेंगे। उसके बाद का स्टेज आता है अर्ली नॉन एम्बुलेटरी स्टेज। यहाँ बच्चों को लंबे दूरी तक चलने के बाद थकावट महसूस होती है। यहाँ सहायक उपकरण घूमने फिरने में बहुत मददगार हो सकते हैं और कुछ समय तक बच्चे स्वयं ये व्हीलचेयर द्वारा घूम सकते हैं। यहाँ इस स्टेज पे आप अक्सर रीढ़ वक्र होते देख सकते हैं। तो इस दौरान फिजियोथेरेपी जो एक्सरसाइज कर रहे थे अभी तक उसको कंटिन्यू करेंगे और उसके अलावा और मांसपेशियों को स्ट्रेचिंग में ऐड करेंगे। उसके अलावा अगर खड़ा रखने के लिए हम स्टैंडिंग फ्रेम का उपयोग करेंगे, जिससे बच्चे खड़े हो सकते हैं और खड़े होते हुए एक्टिविटीज कर सकते हैं। इससे उनके पैरों की ताकत थोड़ी मेंटेन रहेगी और उनको थोड़ा स्ट्रेचिंग भी हो जाता है। इस टाइम हम सही पैर संरेखन देखेंगे, जिसमें बच्चे के पैर का पोजीशन सही मेंटेन करना आवश्यक होता है, जिसमें हम AFOs देते हैं और बाकी सारे यंत्र देते हैं ताकि वो ढंग से अपना पैर मेंटेन सके। अगर इस दौरान ऑर्थोपेडिक का सर्जरी हो तो उसके बाद का प्रबंध भी फिजियोथेरेपिस्ट ही करता है। अगला स्टेज आता है लेट एम्बुलेटरी स्टेज, जिसमें ऊपरी अंग की ताकत कमजोर हो जाती है और ऊपरी अंग के कार्य और आसन के संरेखन में कठिनाई बढ़ती जाती है। तो इस दौरान फिजियोथेरेपिस्ट श्वासन का देखभाल करता है ज्यादातर और पिछले जो एक्सरसाइजेस है उसको जारी रखते हैं और जो अनुकूली सहायता है वो उनको प्रदान करते रहते हैं। तो अभी हम थोड़े और डिटेल में देखेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट किस तरीके से परीक्षण करते हैं या जांच करते हैं बच्चे मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बच्चों को।
तो उसके जांच के अलग प्रकार होते हैं। जैसे देखें तो सपोज इम्पेयरमेंट लेवल के मेजर्स, जिसमें मांसपेशियों की ताकत का जांच किया जाता है, उनकी लंबाई का जांच किया जाता है, जोड़ों की गति और उनकी सीमा की जांच की जाती है, और आसन का संरेखन की जांच की जाती है। उसके बाद हम कार्यात्मक मूल्यांकन भी जांच करते हैं, जिसमें कार्य को करने में कितना वक्त लगता है उसका जांच किया जाता है। तो जैसे जैसे प्रगति होती है रोग की, कार्य को करने में उतनी दिक्कत होती है और कार्य को करने में उतना वक्त लगता है। तो धीरे धीरे जैसे वक्त बढ़ता जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट उसका कंटिन्यूस असेसमेंट करता है, ताकि उन्हें पता चले कि बच्चों को अभी कितना वक्त लग रहा है वही कार्य करने में। उसके बाद विकलांगता की गंभीरता और भागीदारी की मात्रा का जांच किया जाता है, जिसमें स्कूल या दैनिक गतिविधियों में उनको कितनी कठिनाई होती है इसकी असेसमेंट की जाती है। इसके बाद जीवन स्तर या जीवन की गुणवत्ता का जांच किया जाता है, जिसमें रोजमर्रा के एक्टिविटीज में बच्चों को कितनी दिक्कत होती है उसकी असेसमेंट की जाती है। और उसके बाद अन्य टेस्ट, जिसमें दर्द, थकान, तनाव वगैरह की जांच की जाती है। ये सारे जो असेसमेंट है या परीक्षण है, ये रोग के प्रगति की निगरानी करने और प्रबंधन का समर्थन करने के लिए है। ये जांच के उपयोग पूरे जीवन काल में जारी रखना जरूरी है, और उपयुक्त होने पे नए टेस्ट या नए असेसमेंट को हम शामिल कर सकते हैं जब जरूरत पड़े। और कम से कम हर 6 महीने में एक बारी तो ये असेसमेंट करना जरूरी ही है। उसके अलावा अगर स्थिति में बच्चों के कोई बदलाव हो या चिंता का कोई कारण हो, तो फिजियोथेरेपिस्ट 6 महीने के पहले ही ये असेसमेंट कर सकता है, जैसे हर 2 महीने में या 1 महीने में एक बार भी असेसमेंट कर सकता है। तो फिजियोथेरेपी का जो प्रबंधन है वो इन लक्ष्यों पे केंद्रित है। नाजुक मांसपेशियों के रक्षा करना, अच्छी ताकत बनाए रखना, जब संभव हो कमजोरी की प्रगति को कम करना, संकुचन और विकृति की प्रगति को रोकना और कम करना, हृदय और श्वासन क्रिया को बनाए रखना और उसकी देखभाल करना, ऊर्जा का संरक्षण करना, अनुकूली उपकरण प्रदान करना, कार्यात्मक स्वतंत्रता को समर्थन करना और स्कूल, काम, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भागीदारी देना। उसके अलावा जीवन की गुणवत्ता को सुधार लाना, उसमें भी फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता है। तो हम देखते हैं ये स्ट्रेचिंग सबसे पहली चीज है जो फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। ये स्ट्रेचिंग हमने रोज करना बहुत ही जरूरी है, कम से कम 10 से 15 बार करना जरूरी है। और जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो उसे 15 से 30 सेकंड तक उसे होल्ड करना या उसको वैसे ही मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। ये दिन में कम से कम 1 बार करना है, और जितना हो सके 2 बार करें तो बहुत ही बेहतर होगा। शुरुआत में हम पैर के मांस, जैसे एड़ी के ऊपर वाले या घुटने के नीचे वाले मांस की स्ट्रेचिंग किया करते हैं, और जैसे रोग का प्रगति होता है वैसे ही बाकी मांस को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। जैसे जो हिप के मसल्स हैं उनको हम स्ट्रेचिंग में इन्वॉल्व करते हैं। शुरुआत में बच्चे खुद ही स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो खुद ही स्ट्रेच ही कर सकते हैं। और लेकिन जैसे प्रगति होती है रोग की, उसमें वो खुद ही स्वयं स्ट्रेचिंग नहीं कर सकते, उनको किसी और की मदद की जरूरत पड़ती है। जो विकृति को रोकने में स्ट्रेचिंग का बहुत ही बड़ा योगदान है, और उसमें किसी और को या फिजियोथेरेपिस्ट या आपके घर वालों को बच्चों का स्ट्रेचिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाइट स्प्लिंट्स माने रात को स्प्लिंट लगा के सोने से विकृति की रोकने में आसानी पड़ती है। 2 से 3 घंटे खड़े रहना और चलना रोज ही बहुत ही जरूरी है। इससे संकुचन घटन को रोकने में मदद होता है। और जब बच्चों को खड़े रहने में तकलीफ होती है तब हम स्टैंडर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके द्वारा बच्चे खड़े भी हो सकते हैं और एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं सक्रिय व्यायाम में, जिसमें बच्चे घर ही कर सकते हैं ये सारे व्यायाम। उम्र के हिसाब से गतिविधि करने में उनको प्रोत्साहित करना जरूरी है बच्चों को, और बच्चों की गतिविधियों को आत्म सीमित करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें उनकी थकान की लेवल हमें पता नहीं चलती है। तो बेहतर होगा कि वो खुद ही अपने थकान के लेवल को डिटरमाइन करे और खुद ही सीमित करे कि वो कितनी एक्टिविटीज करे और किस लेवल को क्रॉस ना करे। आराम देना बहुत ही जरूरी है एक्सरसाइज के बीच में। तो क्या होता है अक्सर कि हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या ओवर यूज करते हैं अपने मांसपेशियों को, सो उससे कभी कभी हमें लगता है ज्यादा एक्सरसाइज करने से बेहतर होता है, लेकिन इन बच्चों में ज्यादा एक्सरसाइज करने में दिक्कत ज्यादा होती है और प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट होते हैं।
तो अगर अति प्रयोग करते हैं मांसपेशियों में तो उनमें थकान पैदा होती है और उनमें कमजोरी भी हो सकती है। और इन कमजोरी के कई लक्षण हैं, जैसे एक्सरसाइज करने के 30 मिनट के बाद कमजोर महसूस करना, या व्यायाम करने के 24 या 28 घंटे के बाद अत्यधिक दर्द होना, ये एक लक्षण है। उसके अलावा मांसपेशियों की गंभीर तरह से क्रैम्प्स होना, माने सिकुड़ना, या फिर हाथ पैरों में भारीपन महसूस करना, या लंबे समय तक सांस की तकलीफ होना, ये सब टिपिकल साइंस है कि बच्चे ने एक्सरसाइज ज्यादा करी है या ओवर यूज करा है। तो हम ध्यान रखें कि बच्चों को हम ज्यादा फोर्स ना करें और उनकी एक्टिविटीज को हम आत्मसीमित करें, वही बेहतर होगा। एरोबिक एक्सरसाइज वो होता है जो हृदय के दुरुस्त रखने में उनको योगदान करता है, और इस एक्सरसाइज को भी हम एक्सेसिव फोर्स के साथ या ज्यादा एक्सेस में नहीं करेंगे बेसिकली, और हम उप अधिकतम स्तर पे ये ट्रेनिंग करेंगे, मतलब फुल लेवल पे नहीं करेंगे। और इसमें एक्टिविटीज जैसे साइकिलिंग और स्विमिंग जैसे एक्टिविटीज होते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे रेस में जीते, लेकिन हम चाहते हैं कि वो एक्टिव रहे, तो वो एक्टिविटी मेंटेन रहे और खुशी के साथ वो एक्टिविटी करे, ना कि थकावट के साथ वो एक्टिविटी करे। इसके आगे होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब शक्ति, मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाने की ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग कहा जाता है कि जितनी जल्दी उसकी शुरुआत हो उतना बेहतर है, क्योंकि जिन बच्चों को सबसे कम दिक्कत होती है, जिसको सबसे कम दुर्बलता होती है, उनको इस ट्रेनिंग से सबसे ज्यादा ज्ञान होता है। और कहा जाता है कि ज्यादा जोरों से या रेसिस्टिव मसल स्ट्रेंथनिंग जो कहते हैं, या उच्च प्रतिरोधी से अगर ट्रेनिंग करोगे तो उससे मसल में नुकसान ज्यादा पैदा होता है। तो इसे भी हम फुल लेवल में नहीं करेंगे, हम उसको बच्चे के सीमा के हिसाब से हम ट्रेनिंग करेंगे। अगर आगे जाते हैं तो जो एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज होता है, माने सीढ़ियों से नीचे आना या ढलान से जो नीचे उतरने का जो एक्टिविटी होता है, उससे मांसपेशियों में कम से कम कभी कभी सोरनेस पैदा होती है या दर्द पैदा होता है। तो ये जो ढलान से नीचे उतरने वाले जो एक्टिविटीज है, या जो सीढ़ियों से नीचे उतरने वाले जो एक्टिविटीज है, उसको हम कम से कम करें तो बेहतर रहेगा। फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका में वो फिजियोथेरेपी के द्वारा बच्चे को लंबे समय तक चलने की अवधि देते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो या स्ट्रेचिंग हो या एरोबिक एक्सरसाइज हो या कोई भी टास्क के द्वारा ये संभव होता है। और जब चलना मुश्किल हो जाता है, व्हीलचेयर का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें भी फिजियोथेरेपी का योगदान है। व्हीलचेयर को यूज करने में और व्हीलचेयर में ट्रांसफर करने में फिजियोथेरेपिस्ट आपको और आपके फैमिली मेंबर को मदद देता है कि उसे कैसे ढंग से यूज करना है। आगे जाते हैं तो सांस लेने का व्यायाम करना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इन बच्चों को सिखाया जाता है। इसको मजेदार एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे हम बलून को ब्लो करें या बबल्स को ब्लो करें, वैसे प्रकार की एक्टिविटी भी कर सकते हैं। इसमें भी हम अधिक परिश्रम ना करें, बिकॉज अधिक परिश्रम से दिक्कत ज्यादा बढ़ती है, बल्कि हम आरामदायक तरीके से करें, यही बेहतर होगा। दैनिक जीवन की गतिविधियों की निगरानी करना भी फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। अगर उन्हें ऐसे लगता है कि बच्चे को कोई एक्टिविटी करने में दिक्कत हो रही है, तो उसकी जांच करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं, और या तो ट्रीटमेंट को चेंज कर सकते हैं या घर में कोई मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। तो इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वजन पर काबू रखना दोनों आधार और व्यायाम के द्वारा बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर विभूति इसके बारे में बात करेंगी। घर पर आधारित व्यायाम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा समय परिवार के साथ बिताते हैं। तो बेहतर है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज सिखाते हैं वो आप घर पे करें, बिकॉज आपके पास सबसे ज्यादा वक्त होता है, लेकिन आप वो बच्चे की सीमा के अंदर ही करें। और आगे बढ़े तो परिवार के सदस्यों को शामिल करते हुए हमें व्यायाम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बच्चे और परिवार के समग्र स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगर हम कुछ महत्वपूर्ण विधियों को देखेंगे तो ये क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो इसमें जो साइकिलिंग है और स्विमिंग है उसको बहुत रेकमेंड किया जाता है जब हो सके। ऊर्जा का संरक्षण करते हुए कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण है, और बीच बीच में आराम करना या रेस्ट लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बच्चों को खुद ही एक्टिविटीज को आत्मसीमित करने देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे मजे करें और मस्ती करें एक्टिविटीज करते वक्त, ना कि स्ट्रेसफुल या फोर्सफुली वो एक्टिविटीज करें।
क्या नहीं करना चाहिए, अधिकतम जोर से शक्ति की ट्रेनिंग करना या सीढ़ियों के या ढलान से नीचे उतरने वाली गतिविधियां करना, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, अवॉइड तो नहीं कर सकते लेकिन मिनिमाइज करना जरूरी है। और थकान होने तक व्यायाम करते रहना ये नहीं करना चाहिए, थकान होने से पहले ही व्यायाम को रोक देना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें बच्चों को उनकी क्षमता से अधिक मजबूर नहीं करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि वो ये बहाने बना रहे या कुछ और कर रहे हैं, बल्कि हमें उनके लक्षणों का सम्मान करना चाहिए। तो यदि आपका कोई प्रश्न हो तो अगले बातचीत के बाद मैं उसका उत्तर दूंगी। सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से हम चीज़ों को डील कर सकते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के केस में। उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच मैम। नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम आवर थर्ड रिसोर्स पर्सन, Dr. Vibhuti Gupta. She has completed her MBBS in 2012 from IGMC Shimla and DNB in ENT from Shri Gangaram Hospital, Delhi in 2018. She has served in Himachal Pradesh government and in North Railways. Currently, she is working as medical officer in NIPET, Dehradun since July 2020. She has organized a lot of free medical camps with her team in Dehradun for the welfare of the society. Along all these responsibilities, she is also handling the charge of Cross Disability Early Intervention Center in Dehradun. Welcome ma'am, and please enlighten us with the topic diet in muscular dystrophy. Thank you so much ma'am. Thank you Meenakshi ma'am. Thank you so much for the lovely introduction. As the shortage of time is there, so I will start with my presentation. आज हम डाइट के ऊपर बात करेंगे कि डाइट मस्कुलर डिस्ट्रॉफिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए क्या एक्यूरेट रहती है। जैसे कि आप सबको पता है कि इस डिजीज में प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस हो रही होती है, तो हमें एक वेल बैलेंस डाइट की जरूरत रहती है जिसमें एक्यूरेट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, इवन द वाटर कंटेंट और मिनरल्स रहें ताकि वो उसको एनर्जी और उसकी मसल डेवलपमेंट में हेल्प करे। इसके कारण हम इसको हम जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही बेटर रहेगा। हमारे न्यूट्रिटिव डाइट में गोल्स क्या रहते हैं? मेनली हमारा ये होता है कि जब मसल जो बहुत लीन हो गई है उसको प्रिजर्व करना, एक्सेसिव फैट बिल्डअप एंड वेट गेन जो होता है उसको प्रिवेंट करना, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होने देना, क्योंकि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो पेशेंट डायबिटिक हो जाएगा। फैट की ज्यादा एक्यूमुलेशन के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना, बिकॉज थोड़ी मोबिलिटी हमारी हैम्पर हो जाती है, इसलिए हमारी बोन्स वीक होनी शुरू हो जाती हैं। बिकॉज सेडेंटरी लाइफस्टाइल में पेशेंट आ जाता है, मोबिलिटी कम हो जाती है, इसलिए हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई लिपिड लेवल हो जाता है। बिकॉज पेशेंट की मोबिलिटी कम होगी, इसके कारण कॉन्स्टिपेशन पेशेंट में देखी जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए हमें क्या बताना चाहिए कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि प्रोटीन हमारी मसल्स को बिल्डअप करने में हेल्प करता है। फैट कम होना चाहिए क्योंकि अगर फैट कम होगा तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा, लिपिड्स कम होंगे, उसका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। कार्बोहाइड्रेट कम करने पड़ते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट फिर हमारे साथ ओबेसिटी के साथ लिंक्ड होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को हमें कम करना पड़ता है। अब प्रोटीन का इंपॉर्टेंस क्या रहती है? प्रोटीन की इंपॉर्टेंस यही होती है कि वो मसल की रिपेयर और उसका रीजनरेशन में हेल्प करता है। अगर हम मिनिमाइज करना चाहें अपनी मसल का वीकनेस, उसकी वेस्टिंग, तो हमें एटलीस्ट 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देना चाहिए। जैसे कि अगर 40 केजी वेट है तो हमें 40 ग्राम प्रोटीन उसको पर देना पड़ेगा पर डे के हिसाब से। और क्या क्या प्रोटीन्स हमारे प्रेफर्ड रहते हैं? अगर नॉनवेज खा लेते हैं तो चिकन, मीट, फिश, एग्स, वेजिटेबल्स में बीन्स, सोयाबीन बहुत ही एनरिच्ड प्रोटीन डाइट्स होती हैं। उसके बाद अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें। तो क्या कार्बोहाइड्रेट्स, क्या हम उसको बोल दें कि चीनी खा लो, चीनी से आपको हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई एनर्जी मिल जाएगी? नहीं। हाई कार्बोहाइड्रेट हमें उनको बीन्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स, बहुत सारे फ्रूट्स जो होते हैं, मोस्टली जितने फ्रूट्स होते हैं बहुत कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं विद लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अगर हम उसको बोलेंगे कि चीनी खा लो तो चीनी में बहुत हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है।
स्टार्च हमारी वेजिटेबल्स में कम होना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट हाई होगा लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा। जैसे कि कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये बहुत ही अच्छे सोर्सेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। एक बोन हेल्थ मेंटेन करने के लिए, बोन हेल्थ अगर मेंटेन रहेगी तो उसके फ्रैक्चर्स, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस कम होगा। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कितना लेना चाहिए। अगर 1 से 3 साल का बच्चा है तो एडिक्वेट अमाउंट उसको 500 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। वैसे ही अगर 19 से 70 साल के बीच में ले तो 1000 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से कैल्शियम लेना चाहिए। अब कैल्शियम के सोर्स तो हम लोगों को पता ही है, बहुत ज्यादा बताया जाता है कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो मिल्क है ना, वो लेना चाहिए। पनीर हो गया, योगर्ट हो गया, ये बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। वैसे ही ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स में भी हमें कैल्शियम मिलता है। सबसे ज्यादा कैल्शियम हमें मिलता है स्पिनच, पालक में, बीट रूट में, टर्निप में, इन ब्रोकली में बहुत हाई कैल्शियम हमें मिलता है, जो हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ बीन्स और लेग्यूम्स हमारे पास आ जाते हैं, उनमें भी बहुत हाई कैल्शियम सोर्स, फिग्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए, आलमंड्स हो गए, टोफू हो गया, ये बहुत ही हाई रिच कैल्शियम सोर्स रहता है। जब हमारे पास मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट होता है तो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं पेशेंट्स को। जब ये स्टेरॉइड्स हम पेशेंट को देते हैं तो उसके कारण उनमें वेट गेन होना शुरू हो जाता है। स्टेरॉइड हमारी इम्यूनिटी लो करता है, जिसके कारण उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण शुगर बढ़ जाएगा, पेशेंट डायबिटिक हो जाएगा। इसलिए ये सादा साइड इफेक्ट्स होते हैं जो स्टेरॉइड के देखे गए हैं। तो उनको ओवरकम करने के लिए हमें उनको हेल्दी कार्डियक डाइट पे रखना पड़ता है, जिसमें सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स जो होते हैं हमारे, वो होने चाहिए, जिसके कारण वो हेल्दी रहे। मेन एम हमारा यही होता है कि अनहेल्दी फैट जो होता है उसको हम निकाल दें, जैसे कि नट्स हो, नॉन सॉल्टेड नट्स हो, ठीक है, ऑलिव ऑयल में खाना कुक हो, फिश लिवर ऑयल में खाना कुक हो। इसी तरह से हम उसका हेल्थ, कार्डियक हेल्थ मेंटेन करेंगे। दूसरा, मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिपेशन ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज्यादा देखी जाती है क्योंकि मोबिलिटी कम हो गई होती है। तो उस कॉन्स्टिपेशन को ओवरकम करने के लिए हमें उन्हें प्लेंटी ऑफ फाइबर देना पड़ता है, जो कि हमें होल ग्रेन से मिलता है, लेग्यूम्स, नट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलता है मेनली। और बहुत ही ज्यादा अगर पेशेंट को दिक्कत होती है तो टूथ सॉफ्टनेस पे हमें जाना पड़ता है। देन कमिंग टू कि पानी भी तो हमारे जो 95% बॉडी है वो पानी से ही तो बनी है, इसलिए फ्लूइड का गोल भी मेंटेन करना पड़ता है। एटलीस्ट हमें 1 आउंस पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से, अगर 1 kg है तो 2.2 पाउंड्स का पेशेंट है हमारा, तो उसी हिसाब से हमें फ्लूइड का गोल मेंटेन करना पड़ता है। और मेनली हमें ऐसा फ्लूइड देना है उसको जो लो इन शुगर कंटेंट उसमें बहुत कम हो, आपका उसमें ऑक्सीडेंट्स हो, उसमें कैल्शियम रिच हो, नॉन फैट हो, ये चीजें हमें फ्लूइड गोल के लिए मेंटेन करनी पड़ती है। देन वी हैव सीन दैट इन पेशेंट्स में रिस्क होता है किडनी स्टोन्स डेवलप करने का, तो उसके लिए हाई फ्लूइड इनटेक रहना चाहिए, लो सॉल्ट रहना चाहिए, और मेनली जो हमारे पास हाई सॉल्ट इनटेक फूड्स होते हैं उनको अवॉइड करना पड़ता है, और इंक्रीज करना पड़ता है सिट्रस फ्रूट्स का कंजम्पशन, ताकि किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन रिड्यूस हो जाए। अब अगर हम पूछें कि क्या नहीं खाना चाहिए, एज आई एम रिपीटिंग अगेन कि शुगर वाला कंटेंट नहीं खाना चाहिए, प्रोसेस्ड फूड जैसे व्हाइट ब्रेड, पास्ता इन पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए, शुगर स्वीटेड बेवरेजेस हो गए, कॉफीज, अल्कोहल, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर नॉट रिकमेंडेड, दीज आर नॉट रिकमेंडेड फॉर एनीवन फॉर एन हेल्दी डाइट। एनी फूड्स जो पोटेंशियल एलर्जेंस हो, उसमें जो रेस्पिरेटरी मसल्स पे एक्ट करेंगे और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स करें, वो नहीं लेने चाहिए। कॉफी नहीं लेनी चाहिए और अदर स्टिमुलेंट्स नहीं लेने चाहिए और रिफाइंड फूड्स नहीं लेने चाहिए, फैटी मील्स कम कर देनी चाहिए, और ड्राई फ्रूट नहीं लेंगे क्योंकि डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग शुरू हो जाती है। तो जितना ड्राई खाना हम खाएंगे उसको उतना ही डिफिकल्टी इन च्यूइंग होगा और डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग होगा। थैंक यू सो मच। This was all related to the nutrition and diet in muscular dystrophy. Over to you, Meenakshi ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. It was really very informative information. उम्मीद करती हूँ हमारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत हेल्प हुई होगी कि इस तरीके के बच्चों को किस तरीके से खाने पीने के द्वारा भी हम जो है हेल्प कर सकते हैं उनकी मेंटेनेंस में, उनके रिहैबिलिटेशन में। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं लेना चाहूंगी डॉक्टर
प्रतीक्षा राव मैम से। सो मैम, फर्स्ट क्वेश्चन है मैम, जानना चाहते हैं लोग कि जैसे कुछ जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही दूर के किसी विलेज में रहते हैं, जिनके लिए आना इतना इजी नहीं होता, कन्वीनियंट नहीं हो पाता फैसिलिटीज। तो किस तरीके से उनको घर रह करके हम मदद कर सकते हैं, या पेरेंट्स क्या कर सकते हैं जिससे कि बच्चे को हम एक रिहैबिलिटेशन दे सके घर पे रहकर ही? तो डिस्टेंस से इतना फर्क नहीं पड़ता। स्पेशली हमने अभी देखा है पैंडेमिक के दौरान कि वेबिनार्स हो रहे हैं। अब मैं यहाँ बैंगलोर में बैठी हूँ, आप वहाँ बैठे हो, तो या तो हम इंटरनेट के द्वारा उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर आपके सेंटर में से कोई उनके घर जा सकता है और उन्हें एक्सप्लेन कर सकता है उसके बारे में, या फिर हम फोन के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या एक्सरसाइज हो रही है, या वो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने बच्चों के एक्सरसाइजेस को, जो आपको व्हाट्सएप के द्वारा सेंड कर सकते हैं, और आप चेक कर सकते हैं कि वो ढंग से कर रहे हैं या उनमें कोई मॉडिफिकेशन करना है। तो इतने सारे माध्यम अभी अवेलेबल है जो हम यूज कर सकते हैं बच्चों को पहुंचने तक। तो अगर वो रूरल एरिया में हो या सब अर्बन एरिया में हो, फिर भी हम उन तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू मैम। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ही से ही है कि जो पीयर्स होते हैं, जो बच्चों के साथ में खेलने वाले लगभग सेम उम्र के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि इस तरीके के बच्चों की जो मांसपेशियां होती हैं वो कमजोर होती हैं, वो ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं या थक जाते हैं, जैसा आपने बताया। तो किस तरीके से हम उनको पीयर्स के साथ इन्वॉल्व करा सकते हैं, कैसे जो है एक माहौल मतलब दे सकते हैं हम अपने बच्चों को कि वो भी एक ग्रुप पार्टिसिपेशन करें? तो ग्रुप पार्टिसिपेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हमें अपने बाकी बच्चों को ये समझाना है कि हम साथ ही में खेले और कूदे। और कभी कभार ऐसा होता है कि जो बच्चों के सिबलिंग्स होते हैं या उनके भाई बहन होते हैं, उनके साथ बच्चे और बेहतर तरीके से एक्सरसाइज कर पाते हैं और उनसे उनको ज्यादा मदद मिलता है। तो वी कैन इन्वॉल्व ऑल द पार्टिसिपेंट्स, सारे बच्चों को हम साथ ही में वही एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं जिससे डीएमडी के बच्चे को या जिस मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले बच्चे को फायदा हो सकता है। तो हमें उनको समझाना चाहिए कि हमको साथ में खेलना है और एक साथ में रहना है, और साथ ही में एक्सरसाइज करना सिखाएंगे तो बेहतर रहेगा। उम्मीद करती हूँ मैंने आपका उत्तर दिया। या थैंक यू मैम, आई थिंक ये हेल्प करेगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हुमायूशी मैम आपके लिए है। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जानना चाहते हैं, जैसे आपने बात की कि हम बच्चों को किस तरीके से पहचान सकते हैं, कितना अर्ली पहचान सकते हैं। तो मैम, जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी कि जो हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन में हैं, बच्चे हर चीज़ नहीं बोल सकते हैं। तो कॉमनली जो हम चीज़ देख पाएंगे या जिससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे सिम्टम्स, जैसे कि बच्चा बहुत ज़्यादा गिर रहा है, फ्रीक्वेंट फॉलिंग हो गया है जो कि पहले नहीं था बच्चे में। जब बच्चा खड़ा होने की कोशिश कर रहा है तो उसे सहारा लेने की ज़रूरत पड़ रही है। गोवर साइन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज़मीन पर हाथ रखते हुए अपनी ही बॉडी का सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश कर रहा है। जब बच्चा लेटा हुआ है या बैठा हुआ है तो उस समय उस पोजीशन से चेंज करके उसे खड़े होने में दिक्कत आ रही है। तो ये जो है, ये कॉमनली साइंस जो है जो कि हम लोग देख पाते हैं, जिससे कि हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, या फिर पेरेंट्स टीचर्स इस चीज़ को देख पाते हैं और आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि बच्चे में जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी है वो शुरू हो रही है। थैंक यू सो मच मैम। आई होप कि हमारे जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें अपने प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। इन लास्ट मैं जो है वोट ऑफ थैंक्स करना चाहूंगी हमारे सारे ही मेंबर्स का। तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ हमारे रिस्पेक्टेड डायरेक्टर डॉक्टर हिमांशु दास सर का, हुमायूशी अभी मैम का, डॉक्टर प्रतीक्षा राव मैम का एंड डॉक्टर विभूति मैम का, जिन्होंने अपना जो इतना कीमती समय है वो दिया। उन्होंने अपने जो नॉलेज है वो हमारे साथ शेयर करी और एक ग्राउंड लेवल पर आकर के हम लोगों को समझाया कि किस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं, किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं, रिहैबिलिटेट कर सकते हैं एक बच्चे को जिसको मस्कुलर डिस्ट्रोफिया है, और क्या हमारे डाइट का रोल रहेगा इन बच्चों में, किस तरीके से हमारी जो डाइट है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
So thank you all the resource person and director sir. मैं अपने ऑडियंस का भी थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने इतने पेशेंसली इस पूरे वेबिनार को सुना एंड पार्टिसिपेट किया, अपने क्वेश्चंस रखे. होपफुली कि सबको बेनिफिट हुआ होगा इस वेबिनार से. इन लास्ट जो है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड वी विल नेक्स्ट सी यू इन द नेक्स्ट वेबिनार. तो हम कोशिश करेंगे कि हम इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वेबिनार हम लेकर आए. मैम, एक क्वेश्चन अभी हमारे पास आया है, इफ यू डोंट माइंड तो प्लीज आप ये क्वेश्चन ले लीजिए. मैम, क्वेश्चन है एनी कनेक्शन ऑफ एग्रेशन एंड डाइट. डॉक्टर विभूति मैम. Thank you, Meenakshi ma'am. A nice question, I would say. Any connection of aggression and diet? Definitely not diet will be related with aggression, but आपका body का weight, आपका खुद का morale, आपका stress factor is related with aggression. So as of now, I don't know any food is related with aggression or not, but definitely आपका body का balance, आपका stress factor aggression के साथ related होता ही होता है. डेफिनेटली अगर आप ओवरवेट हैं तो आप जनरली सैड रहते हैं, अग्रेसिव रहते हैं, मूड स्विंग्स रहते हैं. सो इट इज आउट ऑफ द वे, इट इज नॉट रिलेटेड टू मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. आई एम जनरली टॉकिंग अबाउट इन जनरल टर्म्स कि व्हाट फूड कैन कॉज एग्रेशन इन पीपल. थैंक यू मीनाक्षी मैम. थैंक यू सो मच मैम. एंड इन लास्ट, थैंक यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर टुडे.